Now the next topic that we are going to study is the average atomic mass. So what do we mean by the average atomic mass? So students, as you already know that there are so many elements which are always present in the form of their isotopes also. For example, the simplest one that we can take is carbon. Again we can take that is chlorine. So for those elements, how can we find out a single atomic mass? अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास अपने अपने आइसोटोप्स प्रेजेंट है तो हम कौन से आइसोटोप के मास को करेक्ट मानेंगे? दिस इज अगेन वन क्वेश्चन. सो फॉर सच एलिमेंट्स जिनका एक से ज़्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है, यानी कि जो अपने आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट है, फॉर दोज सब्सटेंसेज और फॉर दोज एलिमेंट्स बेसिकली व्हाट वी कैलकुलेट देयर एवरेज एटॉमिक मास. Right? So average atomic mass में एक और question sometimes they people ask you that why some of the elements has got the mass in decimal. So it is because decimal में जिसका भी mass आता है basically that is because that element consist of the isotopes. और जब हम isotopes का average atomic mass निकालते हैं तो generally जो हमारे atomic masses आते हैं they comes in the decimal. So that is because we have calculated their average atomic mass. Now again second question arises that how the average atomic mass can be calculated. सो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो वो दो तरीके से आ सकते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज हियर एज यू कैन सी आई हैव रिटन 3 isotopes of carbon having the atomic mass as 12, 13 and 14 and this is the abundance of those. यानी कि ये कार्बन 12 नेचर में कितने abundance में प्रेजेंट होती है. तो यू कैन सी इट इज प्रेजेंट इन अ रेशियो ऑफ 98.892%. Carbon 13 is present in the form of in a percent of 1% only and 14 is present in a very small ratio and that is 2 into 10 is for minus 10%. So ये जब abundance आपको परसेंट में गिवन है और यहाँ पे हर एक का हमने क्या लिखा हुआ है बच्चों एटॉमिक मास. तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर abundance परसेंट में गिवन है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास with that of the abundance. तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी थोड़ा, तो that will become 12 into 98 जितनी भी वैल्यू है प्लस 13 into 1.108 प्लस 14 into 2 into 10 is to minus 10 and we will divide that by 100. So जो भी आपका आंसर आएगा that will become the average atomic mass. लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंट की जगह abundance आपको रेशियो में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन वॉज that there are 2 isotopes of carbon as chlorine 35 and chlorine 37 which are present in the nature in a ratio of 3:1. तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे abundance को रेशियो के फॉर्म में दिया है. तो obvious this is understood that chlorine 35 is present in 3 part whereas chlorine 37 is present in a ratio of 1. तो ऐसे में हम क्या करेंगे? Again we are going to do the same thing. हम क्या करेंगे बच्चों? 35 यानी कि atomic mass of first यानी कि 35 into the abundance. abundance कितना है? 3 है, राइट? प्लस 37 into 1 अपॉन कितना आएगा? अपॉन हमने 100 क्यों किया था? बिकॉज अवर abundance one it was in percent. लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशियो है, वी हैव टू ऐड दिस रेशियो नाउ. तो 3 plus 1 is equal to 4. So divide that by 4 and you will get the answer and that will be the average atomic mass for chlorine. तो मैंने दो आपको अलग अलग मेथड बताए हैं. अगर परसेंट गिवन है तो कैसे करेंगे और अगर वो रेशियो में गिवन है देन आप उसको कैसे करेंगे, राइट? नाउ अगेन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द मोल कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज अ मोल? दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लास 9th ऑल्सो. देखो बच्चों, मोल्स को अगर हम डिफाइन करें तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू 1 dozen is equal to, you will say ma'am 12. I will say a century is equal to, you will say 100, right? So similarly mole जो है एक ऐसा concept है which is used in order to measure or to count the number of atoms, molecules, electrons और the ions. या फिर हम इन सबको हटाकर एक वर्ड यूज कर सकते हैं एंटिटीज. तो एंटिटीज का मतलब क्या हो सकता है? इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी आयंस. तो अगर केमिस्ट्री में हम इन सारी एंटिटीज को मेजर करते हैं तो हम किस में मेजर करते हैं? मोल में, राइट? सो मोल इज बेसिकली अ मेजरिंग यूनिट फॉर द एंटिटीज दैट इज प्रेजेंट, राइट? नाउ जैसे मैंने आपसे कहा 1 dozen is equal to 12. सिमिलरली 1 mole is equal to Avogadro's number, या फिर हम उसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स. अब मैंने पार्टिकल्स क्यों लिया भाई? अगर मैं आपसे कहूँ 1 dozen बनाना तो आप कहेंगे 12 बनाना. मैं आपसे कहूँगी 1 dozen बॉल, आप कहेंगे मैम 12 बॉल. सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा 1 mole of atom तो ये हो जाएगा 1 mole of atom
will be equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. अगर मैंने कहा 1 मोल मॉलिक्यूल तो ये हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ना क्वेश्चन ये आता है बच्चों, आप कहोगे कि मैम वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि 6.022 into 10⁻23 ये आया कहाँ से? तो दिस इज, वी डोंट हैव टू गो सो डीप इनसाइड, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. तो ये बेसिकली क्या किया हमने बच्चों, वी हैव एक्चुअली मेजर्ड, हमने कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम को लिया और उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन को कैलकुलेट किया. तो दैट केम आउट टू बी 6.022 into 10⁻23 और उसी को हमने क्या दे दिया, मोल की वैल्यू. यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल, और हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स. यानी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने ही नंबर पार्टिकल्स होंगे जितने की एटम्स प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में. यानी कि कार्बन 12 का आपने 12 ग्राम जो ले लिया है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके बराबर 1 मोल होता है. और ये 12 ग्राम में कितने प्रेजेंट है कार्बन 12 के एटम्स, दैट इज दिस मच, राइट. तो हमने किसको स्टैंडर्ड माना है, अगेन वी हैव टेकन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, जैसे कि हमने एटॉमिक मास में 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 लिया था, तो मोल्स के लिए हमने क्या ले लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एंटिटीज एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, एंड दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23. सो यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं दैट आई विल बी गिविंग यू एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Now, as we have already discussed about the mole concept, now we are going to see certain numericals that will be based upon the mole concept. So, इसके लिए बच्चों you have to first of all look for the formulas. और एक बहुत ही common सा और बहुत ही simple formula है that will be used in many of the numericals, and that is 1 mole of an atom will be equal to the Avogadro's number of atom will be equal to the gram atomic mass. So as you can see that मैं अगर एटम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी एटम्स लिखे हैं और यहाँ पर भी एटॉमिक मास लिखा हुआ है. और नेक्स्ट फॉर्मूला है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल. अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, देन वी आर गोइंग टू टेक द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर दैट, राइट. पहले का एग्जाम्पल देखते हैं. हमने जब एटम लिया तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है फॉर ऑक्सीजन एटम, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इधर डायरेक्टली हो जाएगा. लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओनली ओ आई एम राइटिंग, व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटम, राइट. विल बी इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1 मोल अगर ऑक्सीजन एटम का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, that will be equal to Avogadro's number, that is 6.022 into 10⁻23 atoms of oxygen. यानी कि उसमें 1 मोल अगर हमने अमाउंट ले लिया ऑक्सीजन एटम का तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, इतने एटम्स होंगे. और ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 16 ग्राम. बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी बच्चों, ठीक है, 16 ग्राम. नाउ अगर क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला. इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अगर हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल क्वांटिटी ले ली तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगेन दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 ओनली, राइट. एट द सेम टाइम अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स, राइट. तो ये क्राइटेरिया है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड अपॉन दिस मोल कॉन्सेप्ट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। किसमें? पहला क्वेश्चन है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन में, यानी कि 7.85 ग्राम ऑफ आयरन कितने मोल्स के बराबर होगी। सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर हमें किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसका है? आयरन एटम है, राइट। तो हमारे पास गिवन मास कितना है बेटा? दैट इज 7.85 ग्राम, तो हमने लिखा 7.85 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन होता है 55.8, तो हमने ले लिया 55.8, राइट। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली 4.68 माइक्रोग्राम ऑफ सिलिकॉन, अब यहाँ पे माइक्रोग्राम हो गया, यहाँ पे तो ग्राम था, तो हम सिंपली क्या करेंगे? माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4.68 इंटू 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 28.1, राइट। अगेन आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगेन 65.6 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम में इंस्टेड ऑफ इंटू -3 हम इसको लिखेंगे, दैट विल बिकम 65.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कार्बन कितना होता है एटॉमिक मास? कार्बन 12, राइट। इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट सेज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। वो अब आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, यानी कि वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे आर्गन के। तो हमारे पास एटम की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, एटम्स की। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे? ये वाला। अब इसमें देखो ये एक पूरा बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से किसी भी दो को छांटना पड़ेगा। इन्होंने कहा 52 मोल्स ऑफ आर्गन, यानी कि मोल की बात हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की बात हो रही है, यानी कि हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो इस वाले क्वेश्चन से बन जाएगा। अब क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? 1 मोल ऑफ किसका? 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आर्गन। तो भाई 52 मोल्स में कितने होंगे? सिंपल कैलकुलेशन है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1 into 52 and you will get the answer, right? Again doing the next question, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थोड़ा लिया है ये क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट इज इन योर NCERT एक्सरसाइज ऑल्सो, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। 52U यानी कि यूनिफाइड मास, उसने कहा 52U ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 52U ऑफ हीलियम। अब 52U आपको मैंने पहले भी बताया इससे पहले वीडियो में, U इज बेसिकली डिनोटेड फॉर द एटॉमिक मास। AMU की जगह अब हम यूज करते हैं U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो हीलियम की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हीलियम का एटॉमिक मास कितना है। वो होता है 4U, यानी कि एक एटम का मास बच्चों 4U है, यानी कि 4U कितने एटम्स का है? 1 एटम का है भाई, ठीक है, 1 एटम ऑफ हीलियम, यानी कि 4U इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। तो फिर 52 अगर U है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन एक और क्वेश्चन आया 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। नाउ आपको 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अगेन हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आओ फिर से। अब मैंने आपको 3 पोर्शंस लिखवाए हैं। अगेन नाउ आप अपना फॉर्मूला खुद बनाएंगे। यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ एटम्स की, यानी कि इस वाले पोर्शन की, और 52 ग्राम ऑफ हीलियम की। 52 ग्राम्स यानी कि ग्राम, यानी कि अब हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम हीलियम के लिए लगाते हैं तो क्या बनेगा। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6 पॉइंट, देखो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स में लिख रही हूँ। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम्स। तो मैं इसको लिख रही हूँ, इस वाले फॉर्मूले को मैंने देखो इस तरह से लिख दिया, 4 ग्राम्स विल बी इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हो जाएगा,
राइट। कहाँ से लिया बच्चों मैंने ये वाला अपना पोर्शन, मैंने इस वाले फॉर्मूले को से किया है। कौन सा वाला, मैंने कहा जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था, सिमिलरली यहाँ पे आप हीलियम का लेंगे तो हमने कहा था 6.02, तो ये पूरा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 1 मोल ऑफ हीलियम is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of helium is equal to gram atomic mass of helium। तो ये बन जाएगा 1 is equal to 6.022 into 10⁻23 is equal to 4 grams। तो मैंने अब ये वाला पोर्शन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है 4 ग्राम। और यहाँ पे कितने के बारे में पूछा है, उसने पूछा है 52 ग्राम्स कितने के बराबर होगा, कितने एटम्स होंगे इसमें, तो सिंपल सा है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ एटम्स। सो बेसिकली आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। Now there is one more type of numerical that is given in your NCERT book, and that is to calculate the mass percent. So what do we mean by the mass percent? See, basically whenever we talk about any compound, you already know that consists of different type of elements. So in order to find out how much percent of a particular element is present in a given compound is known as the mass percent of that element in a compound। यानी कि किसी भी compound में कोई भी एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है उसको ही हम कहते हैं मास परसेंट। तो न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म में आएंगे बच्चों, दे कैन गिव यू अ फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ ए सिंगल एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, यू ऑलरेडी नो एटॉमिक मास फॉर कार्बन इज 12 and how many atoms are there, 6, so multiplied by 6, plus hydrogen atomic mass is 1, how many atoms are there, 12, again atomic mass for oxygen is 16 and it is multiplied by number of atoms, so it will become 180। यानी कि 180 हमारे इस पूरे के पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंट ऑफ कार्बन। नाउ यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक कार्बन एटम को ले लेते हैं, तो वो लिखते हैं, निकालेंगे कैसे आप, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। लेकिन इंस्टेड ऑफ सीइंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, वो जनरली सबको 1 कंसीडर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6 एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि 6 इंटू 12 होना चाहिए, राइट। 1 एटम को मल्टीप्लाई करें, 1 एटम के मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 एटम से, डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100 विल गिव यू द परसेंट ऑफ कार्बन। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की परसेंट आप कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन इज 1, कितने एटम्स है हाइड्रोजन की, 12, यानी कि 12 अपॉन 180 इंटू 100, दैट विल गिव यू द परसेंट फॉर हाइड्रोजन। अगेन ऑक्सीजन का हम परसेंट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए अगेन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड हाउ मेनी सच एटम्स आर प्रेजेंट देयर, 6 एटम्स आर देयर। तो हमने क्या करा, इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 एंड दैट विल गिव यू द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओनली द थिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इज यू डोंट हैव टू फॉरगेट कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस एटम का एटॉमिक मास लिखेंगे एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। So students, as we have already learned half of the chapter in the previous videos, and the topic that we are going to take today is the empirical formula and the molecular formula. So there will be basically the numericals that will be asked, and you have to solve it in a way that I will be telling you. But before that, the question arises, what is empirical formula and what is molecular formula? What is the difference between both of them? So if we take the case of the empirical formula, see, empirical formula basically gives us the ratio between the number of atoms of the different elements in a molecular formula. What I said, it gives the ratio only. For example, if I take the case of benzene, you all must be knowing the formula for benzene, that is C6 and H6. So if I ask you what is the empirical formula for benzene, so you are not going to tell me C6H6 because this 6 tells us about the number of atoms that each element contains. It means 6 contains carbon and 6 atoms are there of hydrogen. So if you are writing C6H6, that will give me the correct number of atoms.
But what I just told you, that empirical formula only gives us the ratio of the number of elements. So if I take out the simplest ratio, so what it will be? It will be 1 into 1, right? Because I have cancelled it out by the table of 6. So that will be CH only. It means the ratio between the number of atoms of carbon and hydrogen in benzene is 1:1. So empirical formula only gives us the ratio. However, if I ask you for the molecular formula now the molecular formula will be C6H6. So molecular formula basically gives us the exact number of atoms of the elements that are contained in a particular compound. So it gives ratio only and it gives the complete number of atoms, right, of the elements. Now how we are going to do the numericals? So numericals are important. They are generally asked. So the first numerical that is given in your NCERT only. I am taking from example from your NCERT exercise. So in that question it was written that there is a sample that contains hydrogen about 4.07%, carbon is 24.27%, chlorine is 71.65%, and they have given you the molecular mass of that particular compound as 98.96. So in order to solve such questions, first of all we have to make a table, right? That will contain 1, 2, 3, 4, 6 columns. One regarding the elements, second will give the percentage that is already given in the question, and then atomic mass that might be given in the question or you have to write off your own, right? That is given. Again, moles of atom. Now from here you have to do it yourself. So next I have done moles of atom. It means I am trying to find out what are the number of moles of the atom. Then mole ratio. What is the mole ratio? And the simplest whole number ratio that we will be taking in the last. So how to find the moles of the atom? That is very simple. How? Percentage given upon the atomic mass. So I have already written and I have also calculated the moles. So here it has come out as hydrogen 4.07, carbon is 2.02 and chlorine as 2.02. So how I have done? That is percentage given the question divided by the atomic mass. So that will give you the moles of the atom. Now how to find the mole ratio? Again very simple. First of all, find out the smallest ratio that has smallest number of moles that has come out in this particular column. So that is 2.02. Now divide all the moles by this smallest number of moles. So it will be 4.07 divided by 2.02, sorry, and again 2.02 again divided by 2.02, and again 2.02 divided by 2.02. So how I have done? I have selected the smallest number and then I have divided all the remainings, all the moles of atom by that smallest number. So here the smallest number was both of them. So I have done. So how it will come? It will come about 2. It will come out about 1 and it will come about 1. Now the simplest whole number ratio will be this only, 2, 1 and 1. Simplest whole number ratio बच्चों तब काम आएगा जहाँ पर in case for example यहाँ पे अगर मेरा 1.5 आ जाता, right? अब मैं 1.5 number of atoms तो नहीं लिख सकती. सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे इन तीनों को फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1.5 आता, यहाँ पे 1 आता तो मुझे इस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और सब्सिक्वेंटली इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो मेरे पास 1.5 इंटू 2 कितना हो जाता? 3 और 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2. तो वहाँ पे ये सिंपलेस्ट रेशो काम आएगा जहाँ पर कि आपके मोल रेशो डेसिमल में आएगा. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव गॉट 2 1 1, सो आई हैव टेकन द सेम वे. नाउ व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? Very simple. See, I have done as carbon. How much? Only 1 is there written, so I have written only 1. Hydrogen S2, so I have written CH2. Right? Again, chlorine is how much? Cl. So now this has become my empirical formula, which will only give me the number of the ratios of the atoms of the elements in this compound. So that is 1:2:1. So ये तो बना हमारा empirical formula. लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? molecular formula. So there is one formula, that is molecular formula is equal to n into empirical formula. Now this is the formula that you have to learn, right? ये आपको याद करना पड़ेगा. Now what is n? n is very simple. n को हम फाइंड कर सकते हैं by the molecular mass given. इसका भी एक फॉर्मूला है, that is molecular mass divided by empirical formula mass. empirical formula mass यानी कि इस empirical formula के mass से हम
इसको डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना हुआ। कार्बन इज 12 प्लस 2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 35.5. So how much it will become? 35, 36, 37, 37.5 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0.5 आ जाएगा, 789 and that will be 49.5. I hope I am right. If not, then please correct it, right? देखिए शायद ये 49.5 ही आएगा, राइट? ओके, 49.5 कैसे निकाला मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अगेन कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, यहाँ पे 2 एटम्स है बच्चों, सो आई रिटन 2 प्लस क्लोरीन इज 35.5, तो 35, 36, 37, 37.5 हुआ प्लस 12 तो 5, 7, 8, 9 एंड 3 49.5 मेरे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है। नाउ मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 98.96, सो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, सो ये ऑलमोस्ट अबाउट 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। अब इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट विल बिकम 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं है, अब आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? ये वाला, तो हमारे पास आ जाएगा CH2Cl। नाउ बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो इस 2 को जब आंसर लिखते हैं तो आगे लगा देते हैं। नो, मल्टीप्लाई इट, ये आपको नंबर ऑफ एटम्स देगा, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? कार्बन का कितना हो जाएगा? C2, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है तो 2 2 सा 4 यानी कि H4, एंड क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? Cl2। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा दिस इज दिस वन। अब अगर इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा? 2 1 सा 2, देन 2 2 सा 4 एंड 2 1, यानी कि 1:2:1। देखो वही हमने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले निकाला था। सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। केवल आपने 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ही वाला फॉर्मूला एंड वन मोर फॉर्मूला दैट इज दिस वन, सो यू कैन फाइंड आउट द numerical. Now let's take one more numerical that will make the concept more clear. So in this particular question, the compound contains hydrogen at about 3.6%, carbon is 57.8%, and the rest is oxygen. So many times they just write you the rest is oxygen, so no need to get confused. उन्होंने क्या कहा? इस परसेंट के अलावा जितना भी बाकी बचा that will be oxygen. So अगर परसेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपका पूरा का पूरा सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 100, राइट? तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कंटेंट कैसे निकालेंगे बेटा? 100 माइनस द एडिशन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स, तो 100 माइनस 3.6 प्लस 57.8, जितनी भी परसेंट आएगी दैट विल बी ऑफ दैट ऑक्सीजन। लेकिन इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मॉलिक्यूलर मास, उन्होंने आपको दिया है वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास कहीं पे क्वेश्चन पे है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल लिया है। So in this again I have made the table and I have also done the calculation so that the video can become smaller and you can catch it up easily. So इसमें हमने क्या किया? Again we have done the same way. हाइड्रोजन की परसेंट लिखी बच्चों, कार्बन की लिखी है and rest is oxygen, so I have calculated it here. 100 minus addition of these 2 elements, ये और ये, so it is coming out to be 38.6%. Again atomic mass as 1, 12 and oxygen is 16. अगेन हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एटम्स कैसे निकालने हैं? अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, सो आई हैव डन द सेम वे, राइट? तो हमारे पास मोल्स ऑफ एटम्स कितने हैं? एक आया 3.6, एक आया 4.82 और थर्ड वन आया 2.41। नाउ हमें मोल रेशियो कैसे निकालना है मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों में से हमको फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट वन एंड दैट इज 2.41। तो हम अब इस 2.41 से सारे के सारे मोल्स ऑफ एटम्स को डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 3.6 अपॉन 2.41। सिमिलरली मैंने इन तीनों को ही डिवाइड कर दिया, राइट? अब देखो रेशियो कितना आया बच्चों? इसका आया है 1.49 यानी कि 1.5 के करीब, राइट? इसका आया 2 और इसका आया 1। अब यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को निकालने की जरूरत पड़ेगी, सो वो हम क्या लिखेंगे? मैं इसको राउंड ले लेती हूँ, दैट इज 1.5, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, लेकिन मुझे तो होल नंबर रेशियो में चाहिए, तभी तो मैं नंबर ऑफ एटम्स बता पाऊंगी। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 3, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इट विल बिकम 4, और इसको भी 2 से करना पड़ेगा, दैट इट विल बिकम 2। क्यों करना पड़ेगा? ताकि इनका रेशियो सेम रहे। आपको ऑलरेडी मैथ्स में पता ही है कि अगर हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों को करना पड़ेगा, सो दैट द रेशियो कैन बिकम सेम।
अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला विल बिकम, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 3, लेकिन हाइड्रोजन से पहले वी आर गोइंग टू टेक कार्बन। तो हमने कार्बन लिया, कार्बन का कितना है 4, तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे। हाइड्रोजन का कितना है 3, तो मैंने 3 लिखा, and oxygen is 2. So this has become my empirical formula, right? Empirical formula. अब क्या है फॉर्मूला? हम लोगों को क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे कि हमने बताया, यानी कि n निकालना है। और n की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट? अब मुझे इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है, तो यहीं पे निकाल देते हैं इसको। कार्बन इज 12 और कितने एटम्स हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1, कितने एटम्स हैं 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने एटम्स हैं 2। तो ये कितना होगा 4 2 8 and 48, 12 4 48, 3 and 16 2 32, तो इट विल कम आउट टू बी 8 9 10 11 12 13 83, यानी कि ये मेरा क्या आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो बच्चों रख दिया 83, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो पता ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास उन्होंने मुझे दे दिया वेपर डेंसिटी। तो अगेन इसका एक फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, राइट? यानी कि अगर मैं वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो 83 ऑलरेडी ऊपर गिवन है, तो 83 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू 2 है, सॉरी, तो मैंने क्या किया 2, ये ऑलरेडी मैंने एक बार मल्टीप्लाई लगा दिया है, इंटू 2, करेक्ट है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मैंने 2 लिखा, वेपर डेंसिटी 83 गिवन है, तो 83 से 83 कैंसिल, यानी कि मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई? अगेन 2। तो अगेन मैं कैसे रखूंगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? लिखो C4H3O2। तो अगेन आप कहाँ से मल्टीप्लाई कर? नीचे से होगा बच्चों, आगे नहीं लिखना है। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तो व्हाट इट इज गोइंग टू बिकम? C4 ऑलरेडी है, 4 2 8, तो दैट विल बिकम C8। हाइड्रोजन की 3 एटम्स ऑलरेडी है, तो 3 2 6, H6। ऑक्सीजन के 2 एटम्स ऑलरेडी है, 2 2 4, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी C8H6O4।